Yes, a very good afternoon to my class 10. So, how are you all? I hope you all are safe and sound, enjoying your studying in a very new pattern or पढ़ रहे हो. What I hope and what I wish to you. Okay, so in this class, we are going to start up with a new chapter, which is how do organisms reproduce. It's the third chapter of biology. Before I start, I would like to ask everyone is able to hear me properly? Yes? Yes, सब ma'am. Okay, fine. So then we should move on. देखिए बेटा, अब how do organisms reproduce? Before I start up with the chapter, kindly keep in mind क्योंकि जब भी आप क्लास में होते हो तब तो मैं अच्छे से स्कोल्ड कर देती हूँ, right? I don't want any kind of weird questions. ठीक है, you have doubts, you can ask them, but be very reasonable with the doubts. Okay, don't take the things in a very out of the way, right? Okay, देखिए बेटा, अब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं. when we are studying biology is basically आप लाइफ को स्टडी कर रहे हो, right? अब लाइफ का मतलब क्या है? we have so many organisms around us. आपने देखा होगा डॉग्स हैं, प्लांट्स हैं, then you have cats, then humans, then we have horses. इतनी सारी तरह के organisms हैं हमारे आसपास. तो क्या आपके माइंड में कभी ये बात आई है कि यार जैसे अब डॉग है, he is not earning anything, या the dog is not going somewhere for food or anything else, it's not studying, it's not doing any kind of money making activity. So still the population of dog is there, right? It is representing its own species. Similarly, cat है, अगर आपने कभी देखा हो जो kitten होंगे, they will resemble the cats only. As if humans हैं, human babies जो होंगे, they will resemble only humans. They won't look like a dog or they won't look like a horse, right? So that means जो organisms हैं, they are there and they आगे they have some babies or they have further generation जो उन्हीं की generation को represent करती है, right? उनसे match करती है, उनको आगे ही proceed on करती है. So reproduction का मतलब भी यही होता है. Re मतलब again, right? Re का मतलब होता है you have to repeat. Okay, production, it is making, right? So it is the production of new organisms from the existing organisms of the same species, right? ये word बहुत important है, the word same species. ये आपकी definition में जरूर आना चाहिए क्योंकि आपकी जो species होती है, it is the smallest unit. जो हमारा binomial, हम 9th में पढ़ के आए हैं, right? We have studied 9 और हमने वहाँ पे organisms को हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. हमने उनको कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया, उसके बाद हमने उसको डिविजन्स में डिवाइड किया, फिर हमने क्लासेस में किया. तो स्पीशीज होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? अब स्पीशीज मतलब जैसे डॉग है, हॉर्स है, कैट है, दे वोंट इंटरब्रीड, नेवर, राइट? कभी भी आपस में ब्रीड नहीं करेंगे. ब्रीड का मतलब क्या है? दे विल नॉट रिप्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स, नहीं करेंगे. So reproduction is basically the production of new organisms from the existing organisms of the same species. And ये जो reproduction है, this is really important so that जो वो particular species है, it is there on the earth. ठीक है, अर्थ पे सर्वाइवल के लिए ये हमें चाहिए है. तो आपकी रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1 है कि इट इंश्योर्स या इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्पीशीज सर्वाइवल. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, यू हैव टाइगर, राइट? अब आजकल प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, कितना फोकस किया था उस पे लास्ट 5-6 इयर्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइगर्स जो हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू वैनिश ऑफ, राइट? अब तो फिर भी थोड़ी सी उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है. अब पॉपुलेशन, अब देखो, अगर वो नहीं होंगे, दे वोंट ब्रीड, तो क्या होगा? धीरे 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 ऑब्वियसली जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आ रहा है, इट इज गोइंग टू डाई, राइट? वो मर भी रहा है. ये हमारा मूल मंत्र है ना? जो जिंदगी में आया है उसने जाना ही जाना है. सो सिमिलरली जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अर्थ पे आ रहा है ना, आफ्टर दैट इट गोस, राइट? अगर सपोज वो जो एनिमल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है, अगर वो अपना आगे जनरेशन को छोड़कर नहीं जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मैंगो ट्री, ओके? अब मैंगो ट्री जो है उसने आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया. अभी मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एक मैंगो ट्री का गार्डन था, वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रीज थे वो खत्म होने शुरू हो गए, लेकिन न्यू ट्रीज नहीं आए. तो इन द मीन टाइम क्या होगा कि वहां से सारे मैंगो ट्रीज जो है वो खत्म हो जाएंगे. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंगो जो एक स्पीशीज थी वो गायब. वी डोंट
have that on that in that garden particular area. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं. So इसका क्या मतलब है, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए, एक स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत है. नंबर 2, मैंने आपको बताया, इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. नहीं तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं रहेगी, है ना. अगर धीरे धीरे सारी स्पीशीज खत्म होती चली गई, देयर इज नो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो क्या होगा, इन द एंड कुछ भी नहीं बचेगा. एवरीवन विल बी बाय बाय, सब बाय बाय करके चले जाएंगे अर्थ को छोड़ छाड़ के. सो अर्थ कहती है यार अकेले रहना मेरे बस की नहीं है. आई लाइक दिस noise, I like this interaction between the biotic and the abiotic components. So उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो रिप्रोडक्शन है, इट इज देयर. नेक्स्ट आता है बेटा, जो थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि ये जरूरी है ताकि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनके बिल्कुल सेम आपके पास और ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए. फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, एलिफेंट ही इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत नोन है. तो उसके जैसा अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे पास ऑन होंगे, एंड इट विल द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी देयर ऑन द अर्थ. वो अर्थ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे. जैसे ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट. अब ह्यूमंस हैं तो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है तो डेवलपमेंट है, राइट. सो वो टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर पा रहे हैं. सो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं पेरेंट्स. ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है. व्हाट आर पेरेंट्स? पेरेंट्स हमारे दिमाग में तो एक ही पिक्चर आती है ना, मम्मी पापा, राइट. सो हम पेरेंट्स को बायोलॉजी में कैसे समझते हैं? बायोलॉजी में पेरेंट्स वर्ड का मतलब होता है जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे. ओके, सो दोज आर नोन एज पेरेंट्स. एंड व्हाट अबाउट द ऑफस्प्रिंग्स? वो क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दीज पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड. और ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बने, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग्स, राइट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स. इतना बोरिंग चैप्टर तो नहीं है कि सबके सब सो जाओ. आई नो टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा है. हाँ जी, ऑफस्प्रिंग. ओके, अब ये जो हमारी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू मेन टाइप. ठीक है, ये दो तरह से होती है. पहला है एसेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल. ओके, सो रिप्रोडक्शन कितने टाइप की हुई बेटा? रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. One is your asexual and the other is sexual reproduction. Okay, first of all we'll peep into the asexual reproduction, right. अब what do you mean by asexual reproduction? अब इसमें क्या है? asexual मतलब कि there is no involvement of sexes, मतलब कि कोई sex cells नहीं है, एक ही पेरेंट चाहिए होता है, ओनली सिंगल पेरेंट, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिक्वायर्ड है और उसी से ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. सेक्स सेल्स का मतलब है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, राइट. सो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो उसका सीधा मतलब ये है कि भाई आपके न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन हो रही है, राइट. कैसे हो रही है? जस्ट अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है, क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स. गेमीट्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इस केस में आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस केस में ऑर्गेनिज्म को सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट या नो नीड ऑफ सेक्स सेल्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रा, बैक्टीरिया, ठीक है, अमीबा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच एग्जिबिट एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ वी विल लुक इनटू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें ऑब्वियसली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. न्यू ऑर्गेनिजम्स तो बन रहे हैं लेकिन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स अलोंग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट सेल फॉर्मेशन, राइट. सो प्रोडक्शन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दो पेरेंट्स चाहिए हैं. ओके, एंड यहाँ पे सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है. मतलब क्या है? जो गेमीट फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो रहा है. ओके, देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है. जब ये गेमीट्स आपके फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है. अब यहाँ पे जो गेमीट्स बन रहे हैं वो आपके दो तरह के होते हैं. मैंने आपको बोला दो पेरेंट इन्वॉल्व है. सो वन ऑफ द पेरेंट इज मेल एंड वन ऑफ द पेरेंट इज फीमेल. तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे दो गेमीट सेल्स होते हैं. वन ऑफ द गेमीट सेल इज मेल गेमीट सेल एंड द अदर इज फीमेल गेमीट सेल एंड अल्टीमेटली दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. First of all, we will, study about the asexual reproduction. हम यहाँ पे asexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे. Okay?
ओके चलिए मूव ऑन करें. यस ओके. अब देखो क्या Yes, होता है. ma'am. देखो जब हमने सेल पढ़ा था इन क्लास 8 तो वी हैव स्टार्टेड कि जो सेल होता है आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डिवाइडेड अप, है ना. हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके सब सेल से बने होते हैं, राइट. और इसके अलावा जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये बताई गई थी कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं. दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट. फिर हमने धीरे धीरे इसके बारे में बात करनी शुरू की थी. प्लांट सेल पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा, प्रोकैरियोट्स पढ़े, यूकैरियोट्स पढ़े. Along with that, we studied about a process which was named as cell division, right? उसमें क्या था, सेल जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम क्या बोलते थे, डॉटर सेल्स, राइट. सो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म जो है या एक सेल है वो डिवाइड अप होके टू डॉटर सेल्स बनाता है, बिल्कुल सेम डॉटर सेल्स, और खुद वो खत्म हो जाता है, राइट, है ना. तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस. क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस. अब क्या हो रहा है, कुछ बॉडी सेल्स ऐसे होते हैं जो बार बार माइटोटिक डिविजन्स करते हैं. माइटोटिक डिविजन जैसे मैंने आपको बताया, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो टूट जाएगा इनटू टू ऑर्गेनिज्म, राइट. ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए और ये क्या प्रोसेस कहलाई जाती है, माइटोसिस. ठीक है, माइटोटिक डिविजन. अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको करने के 6 डिफरेंट मेथड्स हैं. मतलब ये 6 अलग अलग टाइप्स की हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, राइट. सो वी विल स्टडी अबाउट कि कैसे होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है. सो लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट. सो वेरी फर्स्ट इज फिजन. अब फिजन जो है बेटा उसके वर्ड में ही सारा मतलब छुपा है. फिजन का मतलब होता है टूटना. ओके, फिजन का क्या मतलब होता है, यस, टूटना. टूटना. फिजन मतलब कि आपका जो सेल है दैट इज गोइंग टू स्प्लिट आउट. सो ये जो मेथड है आपका फर्स्ट मेथड है, ये मेथड हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉलो करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स बना लेते हैं. फिजन हमारी आगे दो तरह की होती है, राइट. सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. हमारा जो फिजन है, राइट, फिजन आपका टूटना जो है वो दो तरीके से होता है. वन इज बाइनरी, ओके, एंड द अदर इज मल्टीपल. ठीक है, अब बाइनरी वर्ड तो पता है, हम कंप्यूटर्स पढ़ते आए हैं. बाइनरी मतलब टू, राइट. सो जब एक सेल स्प्लिट होके दो सेल बनाता है देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. मल्टीपल मतलब हमें पता है ज्यादा, मोर देन टू, राइट. जब वो मोर देन टू सेल्स बना रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल फिजन, राइट. मोर देन टू. Yes, ma'am. ओके जी. चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी फिजन. सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द बाइनरी फिजन. अब जैसे हमने इसके डेफिनेशन में समझ लिया है कि जो पेरेंट होगा, पेरेंट सेल जो है दैट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, अब इसमें देखो ऑल्दो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स. ओके, सो हर जो भी आपके यहाँ पे हम मेथड करने जा रहे हैं, हर मेथड के कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर लर्न. ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, ये बहुत इजी हैं, ये आपको लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो पैरामीशियम कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है, इट शोज या इट अंडरगोज बाइनरी फिजन, राइट. अमीबा कौन सा मेथड दिखा रहा है, बाइनरी फिजन. देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है. दिस इज अमीबा पेरेंट सेल. अमीबा आपको पता है शेपलेस होता है, जैसे मर्जी बना दो, राइट. इसके बाद एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. अब क्या हो रहा है जब ये प्रोसेस शुरू होता है, अब इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझो. फर्स्ट जो आपका स्टेप आता है, यू नो, ये एक प्रोसेस ऐसा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि आपने एक पेपर लिया और उसको फाड़ दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं. लेकिन देखिए अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, राइट. छोटा सा तो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, बेचारा कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा. इसीलिए नेचर ने इसे इतना सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है कि कुछ भी नहीं करना आपने, थोड़े से स्टेप्स फॉलो करो और आप में डिवीजन हो जाएगी, राइट. कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, एक अकेला सेल, इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग ऑन इट्स ओन स्पीशीज. तभी तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ, यू नो, मल्टीप्लाइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. आपने कभी देखा, नोटिस किया है एक चीज, जैसे सपोज करो आपके ब्रेड पड़ा है, राइट, आप भूल गए उसको खाना एंड इट यू जस्ट लेफ्ट आउट इन द किचन यूनिट. कुछ देर के बाद आपको उस पर ग्रीन सा स्पॉट नजर आएगा, राइट.
धागे धागे से। थोड़ी देर के बाद जब आप आते हो तो वो पूरा स्प्रेड कर जाता है। हाउ? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, देयर इज बीइंग रिप्रोडक्शन, और वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो वो फिर बहुत फास्ट पेस पे होता है, इट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट? अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमारा जो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस देखो कैसा है, इट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल, राइट? अब सेकंड, जब आपने सेकंड डायग्राम देख रहे हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके? यहाँ पे आपने न्यूक्लियस की शेप देख ली है, थोड़ा सा वो लेंथन अप हो गया, ओके? आफ्टर दैट जब ये आगे प्रोसेस बढ़ता है तो हमारा न्यूक्लियस जो है देखो दो हिस्सों में बट गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, हमारा सेल अभी नहीं बटा है, ये फरो जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट? अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये जो न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर जा रहा है, हम इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ओके? सो ये क्या स्टेप हो गया, कैरियोकाइनेसिस। और ये जो साइटोप्लाज्म टूट रहा है इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। हमारा साइटोप्लाज्म दूर हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म ने ब्रेक डाउन कर लिया एंड वी गॉट टू डॉटर सेल्स। यस, तो हमारे को क्या समझ में आया कि हमारा जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज अंडरगोइंग बाइनरी फिजन, तो पहले आपका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, इलोंगेट होने के बाद वो दो हिस्सों में बट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से फॉलो होता है और आपके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस, ओके। चलिए Yes, अब करते हैं लेशमीनिया। अब लेशमीनिया क्या है? अब देखो हमारा जो पेपर पैटर्न है इस टाइम पे चेंज हो चुका है, राइट? वी ऑल आर गेटिंग ऑनलाइन टेस्ट, राइट? हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, राइट? अभी क्या है, वी आर नॉट श्योर कि मार्च में कैसा होने वाला है, सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर। अब ये जो लेशमीनिया है, मैं इस पे स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला तो यही बन गया कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लेशमीनिया, तो हमें सबको पता है कि इट इज बाइनरी फिजन। अब दूसरा है कि विच डिजीज इट कॉजेज, तो वो क्या है, काला अजहर या फिर ब्लैक फीवर। यस, ओके, इसे हमने yes, ma'am. लेशमीनिया, ओके? लेशमीनिया क्या कॉज करता है, इट कॉजेज ब्लैक फीवर, और उसे हम काला अजहर बोलते हैं, अजहर इज योर फीवर, ठीक है? चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड टाइप की फिजन विच इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब यहाँ पे आपके दो से ज्यादा सेल्स बनते हैं, सो द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इट स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट वन टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो लेट्स सी कैसे होता है ये। देखिए बेटा, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी प्लाज्मोडियम जो है वो क्या कॉज करता है? आई हैव टी, राइट? यस, प्लाज्मोडियम किस चीज का, लाइक हमारी बॉडी में वो क्या हार्म करता है? यस, भाई मलेरिया कॉज करता है ये, ओके? तो इसको याद रखना है आपने। Okay, लेशमीनिया क्या क्या, ma'am. यस जसमीत, लेशमीनिया जो था वो क्या कॉज कर रहा था, व्हाट इट वाज कॉजिंग? यस, लेशमीनिया, काला अजहर, दैट मींस यू आर नॉट देयर, ओके? दीपांशु? मैम फीवर। हाँ जी, फीवर, ब्लैक फीवर, यस, वेरी गुड। ओके, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है दीपांशु? यस बेटा, it's written on the screen only. Yes, that means you all are not paying attention, that is for sure. चलिए, it causes malaria, the loss is yours, okay? चलिए अब देखो डायग्राम अगर आप देख रहे हो, ये हमारा एक प्लाज्मोडियम है, ओके? as we know कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, पैरेंट रिक्वायरमेंट इज ओनली वन पेरेंट। यहाँ पे ये हमारा सिंगल पेरेंट है, ओके? ये सेल है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। अब ये बाइनरी फिजन से कैसे डिफरेंट है, अब आप देखो डिफरेंसेस साथ साथ नोटिस करने हैं आपने। आप ये देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म था इसके सराउंडिंग पे वी हैव अ सिस्ट। क्या है ये? सिस्ट। इट्स अ काइंड ऑफ कवरिंग जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में बचाती है, ठीक है? कवरिंग फॉर अनफेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे अनफेवरेबल का क्या मतलब है? अनफेवरेबल का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन, राइट?
तो इसको ऑब्वियसली कोई प्लेस चाहिए, जब तक डिवीजन हो जाती है तब तक इसको, इसका जो सेल है इट विल बी केप्ट अंडर कवर, तो दैट इज सिस्ट। बाइनरी फिजन में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, राइट, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे जब डिवीजन हुई, यहाँ पे देखो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डॉटर सेल्स, द न्यूक्लियस हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स अलोंग विद साइटोप्लाज्म, राइट। एंड लास्टली लास्ट स्टेप क्या होता है, जो सिस्ट था इट ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजेस द डॉटर सेल्स, राइट। तो एक ही ऑर्गेनिज्म से यू आर गेटिंग सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स कितने सारे मिल जाते हैं, राइट। अब ये देखो एक प्लाज्मोडियम सेल, ये आई हैव रिटन दिस एनालॉजी फॉर यू, कि अगर एक प्लाज्मोडियम सेल जब रिप्रोड्यूस करता है ना बेटा, आप ये देखो कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 1000 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन एट व्हाट पेस इट डिवाइड्स, जब ये हमारी बॉडी में अटैक करता है। आप ये सोचो सिर्फ एक भी ऑर्गेनिज्म आया, 1000 आए, 1000 के बाद आप सोचो क्या होगा, राइट। सो इट रियली डिवाइड्स अप एट अ वेरी फास्ट पेस, तो इसीलिए इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? यस, ओके, यस मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, ये आपकी सेकेंड टाइप आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच इज नोन एज बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बड? बड हमें मालूम है, हमने फ्लावर्स में देखा हुआ है ना, हम बोलते हैं छोटा सा बड आ रहा है, यू नो, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो एक्चुअली क्या है, अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लो, उसके बॉडी में एक छोटी सी आउटग्रोथ, राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल आउटग्रोथ। आप बड को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ वेरी स्मॉल आउटग्रोथ, राइट, आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। अब ये जो छोटा सा पार्ट बॉडी से ग्रो आउट कर गया था, क्या करता है, ये खुद को उस बॉडी से अलग कर लेगा, राइट। जो पेरेंट बॉडी है जिसमें ये ग्रो किया, उससे ये खुद को डिटैच कर लेगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, हाइड्रा एंड ईस्ट। इसमें क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग, ओके। चलिए अब देखो ये हमारा हाइड्रा है, ओके, ये पेरेंट है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। ये इसके सिर पे हमें थोड़े से टेंटिकल्स मिले हुए हैं। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये एक आउटग्रोथ आ गई, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे भी गॉट दिस, ये आ गया आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड बड। धीरे 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 ये थोड़ा सा ग्रो करता है और आफ्टर दैट इट विल डिटैच इटसेल्फ, ये देखो ये सेपरेट हो गया और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड बडिंग? फिजन में क्या हो रहा है, आपका जो ऑर्गेनिज्म था उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म है ना, वो तो खत्म ही हो गया क्योंकि आगे डॉटर सेल्स है, लेकिन इसमें द पेरेंट सेल इज देयर along with the new cells, okay, got my point? यस मैम। ओके, ग्रेट। अब देखिए ये ईस्ट में है, अब ईस्ट में देखिए ये एक पेरेंट सेल है, इसमें ये देखो ये बड बननी शुरू हुई, उसके बाद ये डिटैच कर गई, राइट, ये न्यू ईस्ट सेल्स बन गए आपके, लेकिन ये पेरेंट सेल यहीं पे है। और कई बार क्या होता है, यू हैव चेन ऑफ बड्स, ईस्ट के अंदर यहाँ पे चेन ऑफ बड्स मिल जाता है, तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, तो बहुत लंबी चेन मिलती है। नाउ द थर्ड मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन, ओके। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, asexual reproduction bodies, reproductive bodies which are covered by hard protective layer, और ये आपको ब्रेड माउल्ड या फिर राइजोपस इसमें देखने को मिलता है, राइट। अब ये देखो ये आपका एक राइजोपस है, ये नीचे जो फैला होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं हाइफे। ये जो आपको ये ऊपर एक मशरूम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, ये जो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्पोरेंजियम, ओके। अब जब यहाँ पे ये जो आपका सिस्ट है, इसका जो कवरिंग है, जब ये ब्रेक डाउन होती है, स्पोर केस जो है बर्स्ट करता है, तो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं एयर में, तभी तो वो ब्रेड माउल्ड मैंने आपको बताया ना बहुत जल्दी क्या करता है, स्प्रेड आउट कर जाता है, राइट। इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं जब भी एक स्पोरेंजियम जो है वो ब्रेक डाउन करता है, राइट। और इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स हैं वो ब्रेड माउल्ड विच इज योर राइजोपस, म्यूकोर, फर्न्स, मॉसेस। अब ये फर्न्स और मॉसेस दे आर ये प्लांटे किंगडम को बिलोंग करते हैं, राइट। सो ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, राइजोपस, म्यूकोर, फर्न्स एंड मॉसेस। नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन। अब रीजनरेशन मतलब
किसी चीज का रिपीट होना, है ना, यही होता है रीजनरेशन. ओके, सो दिस वन इज आवर फोर्थ मेथड. अब इसमें क्या रहता है कि हम किसी भी पार्ट से, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके किसी भी बॉडी पार्ट से ना आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हो. देखो कैसे भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, हमने एक छोटा सा बॉडी पार्ट लिया, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. अरे बाप रे बाप. जैसे कि आपका प्लेनेरिया, ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये बहुत शाना है. देखो जरा, ये ऑर्गेनिज्म है, इसका हेड अलग हो गया, मिडिल पार्ट अलग हो गया, बिल्कुल जो इसका टेल हिस्सा है वो अलग हो गया, और तीनों ने मिलकर रीजनरेट किया और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया. यस, डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो ये क्या है, एक्चुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से रीजनरेशन होती है, और आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो. लेकिन देखो जो रिप्रोडक्शन है, जैसे कि जो रीजनरेशन है आपको लिजर्ड्स में भी देखने को मिलती है. आपको ध्यान हो कभी जैसे आप दरवाजा बंद कर रहे हो, लिजर्ड बीच में आ जाए, उसकी टेल कट जाती है, कुछ दिनों के बाद वो रीजनरेट कर लेती है अपनी टेल. लेकिन बेटा उससे वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी नहीं बना सकती. अगर टेल कटी है तो वो टेल ही रीजनरेट होती है, राइट. तो ये डिफरेंट है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. दे कांट परफॉर्म द रिप्रोडक्शन, द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू दीज सिंपल मीन्स. ओके, नेक्स्ट मेथड इज फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट मेथड क्या है? दिस वन इज सिक्स्थ और फिफ्थ. देख लो, मुझे चेक करना पड़ रहा है. दिस वन इज फिफ्थ. अरे बाप रे बाप, क्या बनेगा बच्चा पार्टी. चलो, ये है फिफ्थ मेथड विच इज योर फ्रैगमेंटेशन. अब इसमें क्या हो रहा है, एक आपका सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. आई एम आस्किंग अबाउट द सिंपल, बहुत सिंपल, जिसकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो बहुत ही कम लेवल पे है. वो क्या कर रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू वन या टू और टू से ज्यादा पीसेस ऑन मैच्योरिंग, और हर जो पीस है वो ग्रो करेगा टू फॉर्म दैट ऑर्गेनिज्म. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पाइरोगायरा और सी एनेमोन्स, राइट. अब ये कैसे होता है? ऐसे होता है ये स्पाइरोगायरा, लाइक ऐसे करके कुछ, राइट. तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ से जैसे इसने यहाँ से स्प्लिट किया तो ये दो हिस्से बन गए, तो ये भी अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी अलग बन जाएगा, तो फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है वो, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर द लास्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. The sixth type of asexual reproduction is vegetative propagation. इसमें क्या रहता है, हम नए प्लांट्स मतलब बना रहे हैं यहाँ पे. They are obtained from the parts of old plants without the help of reproductive parts. देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? फ्लावर. ठीक है, हम उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेते. उसके बिना जो भी बॉडी पार्ट हैं उनसे हम नया प्लांट बना रहे हैं, राइट. बर्ड्स जो होती है, सॉरी, जो बर्ड्स है दे आर इन डोरमेंट स्टेट. अब इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स आई हैव रिटन डाउन, जैसे कि ब्रायोफाइलम है, ये लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. मनी प्लांट है, स्टेम के थ्रू. पोटैटो स्टेम ट्यूबर होता है. स्वीट पोटैटो ये रूट ट्यूबर होती है. गुआवा रूट्स के थ्रू आप नया गुआवा प्लांट जो है वो बना सकते हो. इसमें रहता है जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज क्वाइट फास्टर एज कंपेयर टू द सीड्स वाला जो मेथड होता है. ठीक है, तो अब हमने जो आगे करना है उससे पहले आई जस्ट वांट कि आप मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवाओ.